Assalamualaikum students, I hope you're all doing fine. This is Inia here with another video from STEM International और in history book 7 जो है उसका unit 1 हमने last video में complete कर लिया था. It's time कि हम उसकी exercise में directly dive in कर दें. So I hope कि you have revised all the concepts and all the different factors and things and aspects जो कि हमने cover की थी so that this exercise is going to be easy as cake for us. Okay students, so what we're going to do is we're starting off with the exercise of our unit 1. Unit 1 के अंदर the first thing that we're starting off with are MCQs, तो आइए वो देख लेते हैं. The period of European history extending from about 500 to 1400 till 1500 CE is traditionally known as the. तो this is basically कि जो नाम दे दिया गया था या फिर जो उस फेज़ को टर्मिनोलॉजी जो है वो डेडिकेट की गई थी in order to tell या फिर in order to brief out the composition or all of the characteristics which basically were unique to a particular time period जो कि 500 till 1500 CE का था. So हमने जो है वो chapter में इसको पढ़ा है कि these were known as the middle ages of the European history. फिर उसके बाद question is the early middle ages are known as, so we have already talked about this as well कि middle ages were then divided into 3 phases और उसमें सबसे पहला जो early stage थी that was known as the dark ages and this was basically when the Roman Empire fell और उसकी वजह से फिर power vacuum और फिर a very 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 frequent contestation for who will become the next ruler. The third MCQ is the High Middle Ages or High Medieval period was the period of European history that lasted from around AD. So this was around 1000 till 1250 AD के time period तक जो है वो Middle Ages का High या High Medieval period चल रहा था. Then Islam, another significant religion, had taken birth in Arabia in the. So which century was that? ये भी जो है इसके अंदर there is no conceptual background to it, but simple के कब हुआ था that was 6th century. इसको as King John of England signed the Magna Carta in 1215. उसके बाद Black Death, a bubonic plague, reached Europe. And a bubonic plague, what do we mean by that? This is not a word which is provided in the book either. So bubonic basically comes from, it's a derivative, so it comes from the basic root word which is bubo. Bubo is swollen lymph nodes. So अगर कोई भी infection होता है, कोई viral infection होता है या कोई भी infection हो किसी भी microorganism की वजह से, so what happens is कि क्योंकि वहाँ पे white blood cells जो हैं वो ज़्यादा active हो जाते हैं, ज़्यादा nodes are those places in the body जहाँ पे white blood cells जो हैं ज़्यादा मिकदार में वहाँ पे स्टोर हुए होते हैं एंड दैट इज़ एग्जैक्टली जहाँ पे फिर पैथोजेंस को इंजेस्ट करके लिम्फ नोड्स में लेके जाके वहाँ पे उनकी डाइजेशन और उनका ब्रेक डाउन एंड सच जो है वो कैरी फॉरवर्ड किया जाता है. सो ब्यूबॉनिक से यही मुराद है कि कोई भी ऐसी डिज़ीज़ जिसकी वजह से लिम्फ नोड्स जो हैं वो ज़्यादा स्वेल कर जाएं. ब्लैक डेथ वाज द फर्स्ट टाइम कि इतने बड़े स्केल के ऊपर एक काइंड ऑफ एक पैंडेमिक वहाँ पे जो है वो चल पड़ा था और उसकी वजह से जो ब्यूबो का एक फिनोमेना है वो बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो गया था. दिस इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ ब्यूबॉनिक प्लेग. अच्छा जी, किस साल में इट रीच्ड यूरोप? दिस वॉज इन 1347. In 1444, Gutenberg invents the. तो Gutenberg का हमें reference याद है कि he was the first one to actually add substance to media literacy और इसी वजह से he was the first to invent printing press and this was the first time कि Bible itself was now available for the common man to read on his own. फिर as the first truly recognized discoverer of electricity, कौन थे जी? Benjamin Franklin was the personality who was the first truly recognized electricity as a discovery which could be used. फिर उसके बाद सवालात आ जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे पास. नंबर 1, व्हाट इज़ डार्क एज? नाउ वी अंडरस्टैंड कि डार्क एज इज़ बेसिकली द अर्ली मिडल जो आपका मिडीवल पीरियड था और या फिर अर्ली मिडल एज जो है यूरोप की वो है. एंड वाई इज़ इट नोन एज द डार्क एजेस? बिकॉज के इस टाइम पीरियड पे देयर वाज द रोमन एम्पायर विच फेल और उसकी वजह से पावर वैक्यूम जो है वो क्रिएट हुआ. उस पावर वैक्यूम की वजह से अ लॉट ऑफ फैक्शंस जो कि पहले रोमन एम्पायर के अंदर यूनिफाइड तरीके से एडमिनिस्टर हो रही थी, now what they were doing is कि those factions went against each other और उसकी वजह से there was a lot of chaos because there was no single social, economic और political system at play. हर किसी ने जो भी ग्रुप बीच में से बन रहा था उन्होंने अपना अपना सिस्टम जो है वो शुरू कर लिया जिसकी वजह से there was a lot of friction in the society, a lot of friction in the whole region और there were a lot of wars and battles in order to get who will be the next strong emperor
as strong as that of the Roman Empire. बाद क्वेश्चन है write 4 characteristics of Middle Ages. So characteristics of Middle Ages के अंदर वो सारे हमने जो यूनिक एस्पेक्ट्स पढ़े थे ऑफ द मिडल एजेस, जिसमें ट्रेड किस तरह से हो रही थी, वहाँ पे डेली लाइफ किस तरह की है, ये हमने पेज नंबर 13 ऑनवर्ड्स जो है वो सारा लिया। इन्वेंशंस कौन सी हुई, एजुकेशन किस तरह की जो थी वो थी, एग्रीकल्चर फॉर इंस्टेंस जो था वो किस तरह का यहाँ पे था, स्टेपल फूड कौन कौन से जो थे वो उगाए जा रहे थे, मेन क्रॉप्स कौन सी थी यहाँ पे, रिलीजन या फिर लिटरेचर या फिर इकोनॉमी जो है वो किस तरह से यहाँ पे रह रही थी या फिर सस्टेन की जा रही थी, इंक्लूडिंग फीस्ट, हंटिंग, आर्ट, स्पोर्ट्स एंड गेम। ये सारी की सारी चीज़ों में से कोई 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। फिर व्हाट इज़ मेंट बाय फॉल ऑफ रोमन्स। तो फॉल ऑफ रोमन्स, दिस इज़ बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सा आंसर है कि फॉल ऑफ रोमन इज़ बेसिकली व्हेन द रोमन एम्पायर बिकेम वीक इनफ to not sustain itself as the most powerful empire as it used to be once. ठीक है, so this is when basically the Roman emperor himself fell, he died, और उसके बाद जो है फिर the entire Roman Empire, including the councillors, including the other administrative figures, they weren't able कि वो किसी तरह से जो है वो बाकी लोगों को रोक सकें कि वो रोमन एम्पायर को तोड़ सकें। सो दिस इज़ बेसिकली व्हाट इज़ मेंट बाय द फॉल ऑफ रोमन्स। फिर उसके बाद व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि देयर वाज अ ह्यूज शिफ्ट इन द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ your social as well as political structure of Europe in 1215. This was when England के जो king थे, King John, he came और उन्होंने पहला democratic document जो है based on human rights जो है उसको शक्ल दी थी। सो यहाँ पे हम फ्यूडलिज्म से एकदम डेमोक्रेसी की तरफ जो शिफ्ट आ रहा है वो देखते हैं। दैट इज़ बेसिकली द सिम्बलाइजेशन ऑफ मैग्ना कार्टा। फिर राइट 4 फीचर्स ऑफ मिडल एज इंग्लिश लिटरेचर। तो ये भी हम पढ़ चुके हैं कि इंग्लिश लिटरेचर के क्या क्या जो हैं वो बेसिक करेक्टरिस्टिक्स थे। एनोनिमिटी के बारे में लिखा जाता था, डेरिवेटिव स्टोरीज़ जो थी वो इसमें डाली गई थी, मतलब जो पिछली लैंग्वेजेस में स्टोरीज़ हुआ करती थी उनको ट्रांसलेट करके उनको थोड़ा सा ट्वीक करके जो है वो न्यू स्टोरीज़ बना दी गई, विच बिकेम अ पार्ट ऑफ मेजर इंग्लिश लिटरेचर। फिर उसके बाद ऑरल क्वालिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाता था, बिकॉज इट वॉज सीन टू बी एज वन इंटेलेक्चुअल हाईएस्ट इंटेलेक्चुअल परसूट्स दैट अ पर्सन कुड अचीव। फिर उसके बाद शिवलरी का कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ से ही ब्रांच आउट होता है, यू नो, क्योंकि सोसाइटल केओस था, तो सोसाइटल केओस से थोड़ा करके सिविलाइज्ड अपने आप को जो है वो बना रहे हैं। रिलीजियोसिटी का बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्फ्लुएंस था। वी हैव ऑलरेडी रेड के द चर्च वाज वन ऑफ द मेन पावर हब्स, और इवन एजुकेशन हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे चर्च जिस तरह से गाइडेंस देती थी या जो उसका डिसीजन होता था वही नीचे ट्रांसलेट किया जाता। फिर उसके बाद ये कोर्टली लव, यहाँ पे शिवलरी, रोमांस, और साथ ही साथ हमारे पास इंफ्रा लिटरेरी जो कॉन्सेप्ट है उसको बहुत ज़्यादा आम किया गया लोगों के लिए, ताकि वो एक काइंड ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर की तरफ, फ्रेमवर्क की तरफ जो है वो आ सके। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस जिनके हमने डिटेल्ड थोड़े आंसर्स देने हैं। नंबर 1, आइडेंटिफाई सम सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स ऑफ मिडल एजेस। तो वो भी हम अच्छे खासे कैरेक्टर्स पढ़ चुके हैं, उसमें से चूज़ एनी फ्यू विच यू वांट टू टॉक अबाउट, विच यू वांट टू राइट अबाउट, और उनके बारे में लिखें। जिस तरह बेंजामिन फ्रैंकलिन है, जॉर्ज वाशिंगटन है, लियोनार्डो दा विंची है, विलियम द कॉन्करर है, क्रिस्टोफर कोलंबस है और चंगेज़ खान है। तो इनके बारे में जो है वो आप लिखवन आप जोन ऑफ आर्क के बारे में भी लिख सकते हैं। सो यू माइट चूज सम फ्रॉम द बुक, और यू माइट ऑल्सो एक्सप्लोर द इंटरनेट सोर्सेज टू गो विद सम अदर significant characters that might have existed at the time of the Middle Ages. फिर उसके बाद describe the concept of king and courts। तो ये हमारा बिल्कुल लास्ट जो पेज है चैप्टर का, पेज नंबर 20, उसमें हमारे पास काफ़ी डिटेल्ड एक इंसाइटफुल सा टेक्स्ट है जिसमें कोर्ट और किंग, हाउ डिड दे वर्क हैज़ बीन डिस्कस्ड। तो किंग का एक कोर्ट होता था, उसको किंग्स काउंसिल भी कहा जाता था। काउंसिल और हाउस होल्ड इकट्ठा रह रहा है, वेयर एवर द किंग इज़ गोइंग काउंसिल साथ जाएगा। किंग का मेन एडवाइज़र जो है वो एक लेफ्टिनेंट होता है और वो ही गवर्नमेंट को रन करता है, और उसके चांसलर भी कहा जाता है, चीफ मिनिस्टर भी कहा जाता है। आज भी ये टर्म्स यूज़ हो रही हैं, राइट। और इन जनरल किंग्स और या फिर जो क्वींस होते थे उनको योर मैजेस्टी कहा जाता था,
और जो प्रिंस और प्रिंसेसेस होती थी उनको योर रॉयल हाइनेस कहा जाता था या फिर योर हाइनेस ही कहा जाता था, और मेंबर्स जो होते थे इस कोर्ट के उनको जस्टिसेस कहा जाता था। और यही वर्ड्स और यही टर्मिनोलॉजीज़ आज एक ये जज होते हैं, चीफ जस्टिस है, सो एंड सो, इनके लिए यही टर्मिनोलॉजीज़ आज भी इस्तेमाल की जा रही हैं। उसके बाद जी यू हैव अ वेरी स्मॉल प्रोजेक्ट। व्हाट इज़ दैट यू हैव टू मेक अ चार्ट एंड राइट ऑन इट अ शॉर्ट essay about the education system in Europe during Middle Ages. Education system in the Europe was heavily influenced by what the church wanted them to teach to the students. क्यों? क्योंकि they wanted के सारे बच्चे या सारी जो अगली जनरेशन है वो किसी एक माइंड फ्रेम के साथ बड़ी हो, and that mind frame is going to be supporting whatever the judge is teaching or preaching, right? तो ये सारी की सारी यहाँ पे चीज़ें थी। Moreover जो एक social friction थी in that particular time period, जहाँ पे the women or the female population उनको नहीं था ये right कि वो पढ़ें। This was taken to be a very absurd thing कि भाई एक लड़की भी जो है वो जाके एजुकेशन हासिल कर सकती है या काम कर सकती है बाहर। और दूसरी चीज़ ये कि जो स्टडी है दैट वाज अगैन सारी की सारी मेल पॉपुलेशन को नहीं मिल रही थी। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी व्हिच वाज ओनली अवेलेबल टू द children or the boys who belonged to very wealthy families, सिर्फ वो करते थे। और मोर ओवर जो बेसिक उनका एक एम्फेसिस होता था दैट वाज ऑन लर्निंग मैथ, ग्रामर, म्यूज़िक, आर्ट एंड साइंस। ये बेसिक चीज़ें थी incorporated with sports such as archery, hammer throwing, horseshoes, wrestling, etc. ये बेसिक चीज़ें यहाँ पे जो है वो हुआ करती थी। So you will have to, in order, because you have to write a short essay, so you'll have to go through the internet sources, any other book that you can find in your library, or maybe you can find some articles written on it elsewhere, और उन सब को जो है वो इकट्ठा करके एक्सप्लोर करके then you can come up with a very apt essay for this particular topic. So with that we're done with this chapter. सो स्टूडेंट्स हमने जो भी सारे क्वेश्चंस किए हैं उसमें एक चीज़ जो है वो फैक्चुअल क्लैरिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग और MCQs. नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स जब आपने देने हैं तो वी शुड बी वेरी मच होल्ड ऑन जो कि ग्रिपिंग मैटर है ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। और फिर तीसरी चीज़ जिसमें हमने कॉम्प्रिहेंसिव देने हैं तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो आपने मे बी इंग्लिश राइटिंग में या फिर इंग्लिश बुक कंप्लीट करते हुए सीखी हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ अप्लाई करते हुए अपने बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव से आंसर्स जो है वो बनाने हैं। एंड आई होप कि जो भी हम एक्सरसाइज साथ की हैं that would be helpful to you. So we're now going to meet in the next video with the second chapter. Till then, take care. Allah Hafiz.